Namaste everybody, I am Vijay Kumar. Today I am going to share with you first chapter of class 9th NCERT book, The Fun They Had, written by Isaac Asimov. This is the imagination school of the future. Nowadays, it has become true in advance. पोएट ने बहुत पहले कहा था कि बाई 2050 the situation of the world will be like this, whatever you find out in the imaginations, in the picture. Learning through computers, virtual classrooms, robotic teacher, moving e-text, and all these things, this corona has taught us to do, and we have been separated. Introduction of this chapter. This is a very light story. It is set in the future. It will make all of you love school. This story is regarding school life and how those children who do not go to school miss school. The setting of the story is in the future, when perhaps there will be no school, no books. Now, how those students will miss going to school and will feel that their ancestors, that is, the present generation, you all had fun going to school, meeting and helping each other. In the end, we come to know that this is an imagination of a young girl named Margie, who comes to know that their ancestors used to go to school, all the children used to study together. She feels that they all had a lot of fun when they went to school. So, when we read the story, we feel that school life is very good. And we are fortunate that we have real schools where we go, meet friends, and get a chance to study together. इस कहानी का परिचय इस प्रकार है कि ये कहानी का सेट जो है वो फ्यूचर है, भविष्य के बारे में बताया गया है कि आने वाले भविष्य में जो आज हम स्कूल देख रहे हैं वो स्कूल नहीं होगी, लेकिन लगातार 4-5 महीने से हम लोग भी सब अनुभव कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, पेरेंट्स हों या टीचर्स हो। इस कोरोना ने सबको ऑनलाइन पढ़ने पढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया है। तो इसाक एसिमोव ने ये इमेजिनेशंस किया था, कल्पना किया था, लेकिन आज वो कल्पना सही होती नज़र आ रही है। इसमें मेन कैरेक्टर जो मार्गी है उसको जब एक बुक मिलता है और ये फ्यूचर में मिलता है 2050 में जा कर के, तो बहुत खुश होती है आज के बारे में जान कर के कि आज के बच्चे जो स्कूल जाते थे उनके दोस्त हुआ करते थे, स्कूल में इंट्रैक्शंस होता था, सब टुगेदर खेलते थे, पढ़ते थे, दे गो टू द लाइब्रेरी टुगेदर, दे गो टू द लैब टुगेदर, ऑल दीज थिंग्स वेर हैपनिंग। ये सारे चीज़ हुआ करते थे। तो आज ये अनुभव आप करते हैं, लेकिन आज से कुछ सालों के बाद अगर सिचुएशंस ऐसा ही रहा तो आने वाले दिनों में ऐसा हो कि ऑनलाइन एक क्लास ही ज़्यादा चलेगी, जो अभी चल रही है 4-5 महीने से लगातार आप देख रहे हैं। ये समय का डिमांड है, दिस इज़ डिमांड ऑफ द टाइम, बट दिस वाज रिटन, और वो आज सच हो रहा है। स्टोरी अक्सर जो होती है इमेजिनेशंस होती है, कल्पना लोक की होती है, लेकिन आज वो सच हो जाती है, कभी कभी सच भी हो जाता है। Can you find out whose picture is this one? Of course, this is the author's picture, Isaac Asimov. Now about the author, scholar Isaac Asimov was one of the 20th century's most prolific writers. Writing in many genres, he was known for
science fiction works like Foundation and Me, Robot. He was born on January 2nd, 1920 in Petrovichi, Russia. Isaac Asimov immigrated with his family to the United States and became a biochemistry professor while pursuing writing. He published his first novel, Pebble in the Sky, in 1950. An immensely prolific author who penned nearly 500 books. He published influential science fiction works like I, Robot and the Foundation trilogy, as well as books in a variety of other genres. Asimov died in New York City on April 6, 1992. On the Fun They Had is one of the most popular fiction works written by him. Theme of the story, the main theme in the story, the fun they had is that of education. More specifically, the narrative deals with the future of education, which will become increasingly computerized and estranged from social interactions. तो आज जो इस थीम यही है कि कंप्यूटराइज्ड एजुकेशन हो जाएगी, तो आज तो कंप्यूटराइज्ड एजुकेशन हो गया. उसने बहुत पहले लिखा और आज ये सच हो रहा है. तो सोशल इंट्रैक्शन से हम दूर हो जाते हैं, फेस टू फेस हम मिल नहीं पाते हैं. एंड व्हेन यू आर कमिंग टुगेदर एंड रीडिंग टुगेदर, प्लेइंग टुगेदर, इंटरेक्टिंग टुगेदर, तो यू आर गेटिंग ए लॉट ऑफ चांसेस टू लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम योर peer groups, from your teachers, from your friends. Now you are coming on the story. This is the first page, first half of the page. This we have discussed earlier also. Now story starts. Margie is the main character. Margie even wrote about it that night in her diary in the page headed 17 May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather. मार्गी अपने एक डायरी में लिखती है, और कब लिखती है? 2157 में. अभी 2157 बहुत बाकी है, 37 ईयर्स बाकी है. तो फ्यूचर में बता रहे हैं कि तब वो मार्गी होगी और वो लिख रही है. क्या लिखती है वो आज के बारे में? वो उसको एक बुक मिलती है और यह बुक बहुत पुराना होता है. मारीज ग्रैंडफादर उसको कहा करते थे कि जब वो छोटे बच्चे थे, देयर वॉज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर. तो सारी कहानियाँ पेपर पे लिखे जाते थे. दे टर्न द पेजेज विच वेयर येलो एंड क्रिंकली. तो जब वो पुरानी बुक को वो पलटते हैं तो स्वाभाविक है उसका कलर येलो हो जाता है, मुड़ भी जाते हैं. And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. मार्गी बताती है कि चूँकि वो वर्ड्स पढ़ती थी टेलीविज़न स्क्रीन पे जो कि मूव करते रहता था, स्टिल नहीं रहता था, कांस्टेंट नहीं रहता था, तो देख के बहुत खुश होती है. देखो कितना अच्छा है कि प्रिंटेड बुक्स है, इसमें सारे वर्ड्स कांस्टेंट हैं, हम उसे देख के पढ़ सकते हैं, कोई घूमता नहीं है वर्ड्स. On a screen, you know, and then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. तो जब वो देखती है तो उसको लगता है कि ये सारा वर्ड जो मैंने पढ़ा था स्क्रीन पर, तो वही सारी चीज़ें इसमें तो सेम ही है, कुछ अलग है ही नहीं. गी सेड टॉमी, व्हाट ए वेस्ट. गी जो है सेकेंड कैरेक्टर है, वो टॉमी को कहता है व्हाट ए वेस्ट, क्या ये वेस्ट है. व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक्स यू जस्ट थ्रो इट अवे. आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर. आई वुड नॉट थ्रो इट अवे. गी कहता है कि ये तो बेकार का चीज़ है, हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर तो बहुत सारे बुक्स हैं, इससे सुंदर सुंदर बुक्स हैं, अच्छी अच्छी बुक्स हैं, हम उसको पढ़ लेंगे, मैं तो इसे फेंक देता. लेकिन वो बोलती है नहीं, मैं इसे नहीं फेंकूँगा. सेम विथ माइन सेड मार्गी. मार्गी कहती शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी बुक्स एज टॉमी हैड. ही वॉज 13. टॉमी वॉज 13 वर्ष. मार्गी भी कहती है कि
She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. Tommy ने जितना telebooks देखा है, telebooks refers to the books on the screen, on the computer books you can find out. She said, "Where did you find it?" "In my house," he pointed without looking because he was busy reading on the attice. "What is it about school?" वो पूछती है कि तुम्हें ये बुक कहाँ मिला, तो वो बताता है कि ये मेरे छत के ऊपर एक छोटा सा स्टोर रूम है, स्टोर रूम में ये बुक मेरे को मिला है। तो वो पूछती है उससे कि ये इस बुक में क्या कहानी दिया है, तो बताती कि अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल मतलब होता है कॉन्टेम्पचुअस, शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस। उसको मार्गी को लगा कि अरे ये तो बेकार का चीज़ है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल, व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। वो कहते मेरे को स्कूल से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी को हमेशा स्कूल से नफरत हुआ करता था और इसको और ज़्यादा नफरत हो गया क्योंकि द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग। यार मैकेनिकल टीचर रेफर टू रोबोटिक टीचर्स, कि आप मशीन्स में कोई काम करते हैं वो आपको पढ़ा देता है अगर, तो मैकेनिकल टीचर्स हो गया। had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspectors. वो कहती है एक बार बार हमें टेस्ट ही देना पड़ता था ज्योग्राफी सेक्टर में, मेरा परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं होता है और हमें ऐसा लगता है कि मेरी माँ काउंटी इंस्पेक्टर के साथ बाहर भेज देगी। Here the county inspector refers to those who repairs this mechanical machines, robotic machines or computers. He was a round little man with a red face. Here refers to descriptions of the county inspector. He was a round little man. वो एक छोटा सा नड्डा सा आदमी था, गोल चेहरा था, रेड फेस था उसका, एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स। बॉक्स में बहुत सारे टूल्स थे, डायल्स एंड वायर्स। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। जब वो आया तो वो मुस्कुराया और एक एप्पल दिया मार्गी को। देन टुक द टीचर ए पार्ट, और जो उसका टीचर था कंप्यूटर को था उसको अपने साथ लेके चला गया। मार्गी हैड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी को लगा उसको तो पता नहीं कैसे ये ठीक करेगा इस कंप्यूटर को, उसके टीचर को, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट। एंड आफ्टर एन आवर सो देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली थिन बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वेयर शोन एंड द क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड। लेकिन कुछ घंटों के बाद भी वो ठीक होकर के उसके सामने था, तो उसको आश्चर्य हुआ कि सारी लेसन सब उसके सामने आ गए थे। दैट वॉज नॉट सो बेड द पार्ट मार्गी हेटेड। अब उतना बुरा नहीं था जो मार्गी को नफरत हुआ करती थी। मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क्स। सबसे ज़्यादा परेशानी उसको हुआ करती थी उसमें, जिसमें कि वो होमवर्क्स डाला करती थी स्लॉट में। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट in a punch card. They made her learn when she was 6 years old and the mechanical teacher calculated the marks in no time. अभी जब हम ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एग्जामिनेशंस लेते हैं तो आप लोग ने अनुभव किया होगा कि आपका मार्क्स आपके हाथ में कैलकुलेट होकर के आ जाता है, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे उसको मार्क्स मिल गया होता होगा। नाउ यू आर फीलिंग इट। तो जब 6 साल की थी तभी से वो मैकेनिकल टीचर के साथ पढ़ा करती थी और उसका जितना भी शम होता था सब वो बिल्कुल सेकेंड्स में, फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स में कैलकुलेट होकर के उसके सामने आ जाते थे। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड। इंस्पेक्टर मुस्कुराया और उसने थपथपाया मार्गी के हेड को, प्यार से माथे पे थपकी दिया। ही सेड टू हर मदर इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। अब वो इंस्पेक्टर ने बताया कि देखिए ये छोटी गर्ल्स का फॉल्ट नहीं था कि वो पढ़ना नहीं चाहती थी, वो कम स्कोर करती थी। मिसेज जॉन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर अ लिटिल टू क्विक। मिसेज जॉन्स इज़ द मदर्स नेम ऑफ मार्गी। मार्गी की माँ का नाम मिसेज जॉन था।
तो वो उसने समझाया काउंटी इंस्पेक्टर ने कि बच्ची की गलती नहीं थी, कंप्यूटर जो है वो फास्ट चलना शुरू हो गया था, पर्टिकुलरली ज्योग्राफी सेक्टर में, जिसके कारण ये बच्ची ना तो उसको समझ पाती थी और ना ठीक से उसका आंसर दे पाती थी। Those things happen sometimes, ऐसा होता है। I have slowed it up to an average 10-year level। अब काउंटी इंस्पेक्टर ने जो वो फास्ट चल रहा था कंप्यूटर को, उसको स्लो करके 10 साल के बच्चे जितना समझ सके उस स्टैंडर्ड तक ला दिया था। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory and he patted Margie's head again। और जो भी हो, जितना भी उसका प्रोग्रेस था अब वो संतोषजनक था और उसने खुशी खुशी मार्गी के सर पर हाथ की थपकी दिया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन मार्गी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। वो सोच रहे थे उसका कंप्यूटर ले करके वो इंस्पेक्टर चला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो सोची चला जाएगा तो पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये हर एक बच्चे की इच्छा होती है कि टीचर ना पढ़ाए तो हम मस्ती करें। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड बीन ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। उसको मार्गी को ऐसा लगा कि एक बार ऐसे ही घटना टॉमी के साथ हुई थी, तो टॉमी के टीचर को ले कर के चला गया था। जब उसका हिस्ट्री सेक्टर ठीक से काम नहीं कर रहा था तो उसके कंप्यूटर टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर ले कर के महीनों भर चला गया, उसके बाद दिया। तब तक तो टॉमी मस्ती किया। ऐसा ही मार्गी भी सोच रही थी। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी को कहा, Why was anyone right about school? उसने कहा कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखता है। मार्गी ने टॉमी को बोला। टॉमी looked at her with her very superior eyes, because it is not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago, he added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago। जब मार्गी ने कमेंट किया तो टॉमी ने जवाब दिया गर्व के साथ कि हम लोगों के जैसा स्कूल नहीं है मूर्ख, यह 100 साल पहले की स्कूल है, जिस समय लोग एक साथ पढ़ा करते थे, क्लास हुआ करता था, बच्चे वहाँ जा कर के सामने में बैठते थे, वो मैकेनिकल टीचर नहीं होता था। मार्गी वाज हैड, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। अब वो पूछती कि पता नहीं उस समय उन लोगों का कैसा स्कूल होगा, मतलब हम लोग का जो भी स्कूल है उसकी चर्चा मार्गी कर रही है। सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए व्हाइल। अब उसके कंधे के बगल से झांक करके थोड़ा देर के लिए टॉमी का बुक वो पढ़ती है। देन सेट एनीवे दे हैड ए टीचर। तब कहते ओ अच्छा, जो भी हो उन लोगों को एक टीचर हुआ करता था, यही ना। श्योर दे हैड ए टीचर, बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वॉज ए मैन। यह रेगुलर टीचर नहीं होता था। रेगुलर टीचर मीन्स नॉर्मल लाइक मैकेनिकल टीचर, ऐसा नहीं। वो एक आदमी होता था जो पढ़ाया करता था। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर। अब उस समय चूँकि फ्यूचर सेट है इसका स्टोरी का, तो मार्गी कहती कि एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है। मान लीजिए आज से 30 साल के बाद अगर ये स्कूल का कंसेप्ट ख़त्म हो जाएगा, सारी ऑनलाइन होगी, तो आपके भी बच्चे आने वाले जनरेशन यही कहेंगे कि आदमी भी पढ़ाता था कभी क्या। वही चीज़ यहाँ पे दिखाया जा रहा है। वेल he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions। आजकल जो हम करते हैं, पढ़ाते हैं, होमवर्क देते हैं, पूछते हैं। मैन इजंट स्मार्ट इनफ। वो कहती है कि मैं तो इतना स्मार्ट नहीं हुआ जितना कंप्यूटर होता। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। वो कहता है नहीं, मेरे पिताजी कहते हैं कि वो भी बहुत स्मार्ट हुआ करते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा मतलब बेट यू, बाजी लगाना हो गया। शी सेड आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी।
अब वो कहती मैं नहीं चाहता कोई स्ट्रेंज मैन अजनबी आकर के मेरे घर में पढ़ा है। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी ने हंसा, ठठा करके हंसा वो ज़ोर से। यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर्स घर में नहीं रहते हैं। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, सारे बच्चे वहाँ जाते हैं जैसे आज आप लोग आते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, एक ही चीज़ पढ़ते हैं, जो एक टीचर पढ़ाएंगे सबको ही पढ़ना। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, वो सारे एक ही उम्र के होते हैं। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फीड द माइंड ऑफ इच बॉय एंड गर्ल, लेकिन वो कहती है कि मेरी माँ कहा करती है कि टीचर को बच्चे के एज के अनुसार एडजस्ट होना पड़ता है ताकि उसको सिखा सकें। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे, देन इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अब वो कहता है कि अगर तुमको ये पसंद नहीं है तो तुम ये बुक मत पढ़ो। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली, मार्गी बोली कि मैं ये नहीं कहा कि मैं इसे पसंद नहीं करता। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो फ़नी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। आज का जो स्कूल है उसको फ़नी स्कूल कहती है। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल मार्गी स्कूल, वो अभी आधा भी नहीं पढ़े थे कि मार्गी की माँ ने उसको बुलाया कि मार्गी तुम आ जाओ, तुम्हारे स्कूल का टाइमिंग है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, नाउ सेड मिसेज जॉन्स, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। तो वो कहती है कि मम्मा ये शायद मेरा नहीं है, टॉमी का टाइम है। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। बोला चलो ठीक है, हम अपना क्लास कर लेते हैं। तब टॉमी से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा बुक पढ़ सकता हूँ। मे बी, ही सेड नॉनचैलेंटली, उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए अनमने ढंग से टॉमी ने कहा ठीक है पढ़ लेना। ही वॉकड अवे व्हिस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक्स टक्ड बीनीथ हिज आर्म्स, वहाँ से वो चल दिया व्हिस्लिंग करते हुए, अपने बाँह के नीचे बुक को रख कर के वहाँ से टक दिया, चल दिया। जिससे काँख के नीचे बुक को रख लिया जाता है, जब पढ़ा करते थे हम लोग भी तो ऐसे करते थे कभी कभी। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वाज राइट नेक्स्ट टू द बेडरूम। मार्गी का जो स्कूल रूम था, क्लास रूम था, वो उसके बेड के जस्ट बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, मैकेनिकल टीचर मतलब कंप्यूटर टीचर उसका वेट कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। सैटरडे संडे को उसका स्कूल नहीं, क्लास नहीं चलता था, वो कंप्यूटर की क्लास नहीं चलती थी, एक्सेप्ट हर एक डे उसका रेगुलर टाइम हुआ करता था। बिकॉज हर मदर से लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न ए रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माँ कहा करती थी कि एक निश्चित समय पर अगर कोई पढ़ता है तो ज़्यादा सीखता है। द स्क्रीन वाज लिट अप एंड इट सेड, स्क्रीन पे रोशनी आ गई। टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क्स इन द प्रॉपर स्लॉट। टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन, आज का अर्थमेटिक स्क्रीन पे आया कि आज का जो अर्थमेटिक लेसन है ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क्स, ऑर्डर आया कि अब होमवर्क्स डालो कल वाला। मार्गी डिड सो विथ ए साय, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय। अब वो जो काम कर रही थी मैथमेटिक्स का और उसका दिमाग वहाँ था उस बुक के बारे में जो भी वो देखी थी, जब उसके ग्रैंडफादर छोटे बच्चे थे तो स्कूल में पढ़ा करते थे, किताब हुआ करता था, उसका ध्यान वहाँ था। शी वॉज लॉस्ट इन पास्ट, ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड कैम, वो सोचती थी कि सारे बच्चे एक जगह आया करते थे, लाफिंग एंड शॉटिंग, हंसते थे, चिल्लाते थे। इन द स्कूल यार्ड, sitting together in the classroom, going home together at the end of the day,
they learn the same thing so they could help one another with the homework and talk about it। अब वो सोच रही है कितना अच्छा दिन था जब सारे लोग एक जगह जाते थे, कि स्कूल में जाते थे, कि स्कूल के आंगन में खेलते थे, एक साथ लाइब्रेरी जाते थे, गार्डन में जाते थे, पढ़ते थे, एक ही चीज़ पढ़ा करते थे, एक दूसरे का मदद किया करते थे। क्या मज़े की बात थी। वो बैठी थी कंप्यूटर के सामने में, लेकिन उसका दिमाग पास्ट में था, उस बुक के बारे में वो सोच रही थी। एंड द टीचर्स वेर पीपल, और हंसती है कि टीचर्स पीपल हुआ करते थे, लोग हुआ करते। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और तभी स्क्रीन पर उसका फ्रैक्शन आया, 1/2 + 1/4। मारी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव इट इन द ओल्ड एज। वो सोचती है कि उस समय बच्चे कितना प्यार करते होंगे अपने स्कूल को। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, हियर द फन दे हैड, मतलब मज़ा जो था स्कूल का, वो उन बच्चों के बारे में कह रहे हैं जिनके पास स्कूल था। ऐसा नहीं कि जो घर में कंप्यूटर के पास पढ़ते थे अकेले में, तो उनको वो मज़ा नहीं मिल पाती थी। दिस इज़ द इमेजिनेशन, बट नाउ इट हैज़ बिकम ट्रू। इस कोरोना काल में, दिस इज़ द कोरोना टाइम, it is becoming true that we all are maintaining distance and we are imparting each other teaching learning process in the process of online classes. Message: the author's message is one of the warning against the dangers of computerized homeschooling, which deprives children of the benefits of the personal interaction between students and teachers, which help them to develop many social skills। यहाँ पर ऑथर का मैसेज है, एक चेतावनी है कि बच्चे का अगर होम स्कूलिंग हो रहा है कंप्यूटर पे, तो वो बहुत कुछ चीज़ों से वंचित हो जाते हैं। किन चीज़ों से वंचित होते हैं? उनका पर्सनल इंटरेक्शन ख़त्म हो जाता है, कैसे बात करना है, क्या सिचुएशंस होती है स्टूडेंट के साथ बात करने का, टीचर्स के साथ बात करने का, सोशल स्किल, ये सारे चीज़ ख़त्म हो जाते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी द फन दे हैड। दैट्स ऑल। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।